morning, students. Today I shall start the topic matrix. So first of all, definition is there. How will you define a matrix? So this one is the definition. An arrangement of numbers, symbols or functions in some rows and columns is called matrix. मतलब कि अगर कोई नंबर का, कोई सिंबल का या कोई फंक्शन का हम कुछ रोज में, रोज मीन्स दिस टाइप ऑफ arrangement is called rows and this type of arrangement is called columns. So अगर हम कुछ नंबर्स को, कुछ फंक्शन को और कुछ सिंबल को अगर हम कुछ रोज में और कॉलम में अरेंज कर लेते हैं तो उस अरेंजमेंट का नाम जो है वो होता है मैट्रिक्स. An arrangement of numbers, symbols or functions in some rows and columns is called a matrix. There are P rows and Q columns. Then P cross Q is called order of the matrix. Suppose we have written a matrix which contains P rows and Q columns. Then the representation of the matrix will be P into Q and it is read as P cross Q. The numbers, symbols or functions are called elements of the matrix. This is very important. The numbers, symbols or functions are called as elements of the matrix. Now, representation of matrix. So, how it is represented? The element of a matrix are arranged in rows and columns are enclosed by these signs. These signs means या तो वो स्क्वायर ब्रैकेट में होगा या फिर वो सिंपल स्मॉल ब्रैकेट में होंगे या फिर इस तरह से डबल लाइन ऑन बोथ साइड्स. सो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स. व्हाइल राइटिंग द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ रो इज रिटन फर्स्ट, ऑर्डर ऑफ रो इज रिटन फर्स्ट एंड देन ऑर्डर ऑफ कॉलम इज रिटन. So first we write during the representation, first we will have to write the order of the row and then order of the column. A matrix is denoted by a single capital Roman letter. Single capital Roman letter like this. If we have to represent a matrix A, then we will have to write A enclosed in square bracket according to this sign. And if these are the elements of the matrix, then we will have to arrange these elements in certain rows and certain columns. So here these are the rows and these are the columns. A11, A12, A13 ये सब जो है सो रोज में है. A21, A22 ये सब रोज में है, लेकिन A11, A21, A31 ये सब कॉलम्स में है. ये जो रिप्रेजेंटेशन हमारा है वो इस तरह से है कि पहले ही मैंने कहा यहाँ पर कि जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो पहले रो में होगा और फिर कॉलम में. तो जो 1 जो लिखा हुआ है वो पहला जो है सो रो में है और दूसरा वाला रिप्रेजेंटेशन कॉलम में है. इसका मतलब दिस इज फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, so on 3. So this is the representation. There are more elements in the rows also and there are more elements in the column also. And in a general way we can write as Aij. Aij means ith rows and jth column of the matrix. Now discuss different types of matrix. What are the different types of matrix? So first one is rectangular matrix. Rectangular matrix. If the number of rows is not equal to the number of columns, then it is called as rectangular matrix. So in this matrix, in the example, there are 1, 2, 3 rows and 1, 2, 3, 4 columns. So therefore the representation will be 3 cross 4. Cross means मैंने जो गुना का साइन हम लोग देते हैं, मल्टीप्लिकर जो साइन देते हैं उसको पढ़ते हैं 3 cross 4 और ये उसका ऑर्डर होता है. पहला वाला जो है सो रो होगा, दूसरा वाला कॉलम होगा, 3 रो है तो 1, 2, 3 रो है और 4 कॉलम है, 1, 2, 3, 4. इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन है. तो अगर number of rows is not equal to number of columns, then it will be called as
the number of rows is equal to the number of columns, then it is called as a square matrix. In the given example, there are 3 rows as well as 3 columns. So it is 3 cross 3. So 1, 2, 3, 3 rows and 1, 2, 3, 3 columns. So it is 3 cross 3 matrix. Next is singular matrix. If the determinant of given square matrix is equal to the 0, then it is called as the singular matrix. कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया है और उसका डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में ये डिफरेंस होगा कि जो हम लोग ये मैट्रिक्स का साइन ऐसे लगाते हैं, अगर ये मैट्रिक्स का साइन हम लोग इस तरह से लगा दें तो ये डिटरमिनेंट कहलाएगा. दिस विल बी द साइन ऑफ डिटरमिनेंट. तो ये मैट्रिक्स का अगर हम लोग डिटरमिनेंट लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे A, B, C, D, E, F and G, H, I. So this is the determinant of this matrix. Now singular matrix में उसी चीज को हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि if the determinant of a given square matrix is equal to 0, then it will be called as singular matrix. Suppose A is a given matrix जिसका नोटेशन हम लोग A के बगल में स्क्वायर ब्रैकेट लगा के करेंगे, और यदि इसका डिटरमिनेंट जैसे अभी हमने एग्जांपल में दिखाया कि डिटरमिनेंट इसका ऐसे लिखेंगे, ये मैट्रिक्स का नोटेशन है लेकिन ये नोटेशन डिटरमिनेंट का है, और इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स. नेक्स्ट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. इफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, देन इट विल बी कॉल्ड एज सिंगुलर मैट्रिक्स. अगर ये वैल्यू यहाँ 0 नहीं होता है तब उसको हम लोग बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नेक्स्ट इज द diagonal matrix. A square matrix having all elements 0 except the diagonal, then matrix is said to be a diagonal matrix. A square matrix having all the elements 0 except the diagonal, then matrix is said to be diagonal matrix. So in the given example here only diagonal elements, this is the diagonal, and diagonal elements are only non-zero, other elements are 0, so this will be called as diagonal matrix. Now scalar matrix. A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if the diagonal elements are equal. If the diagonal elements are equal, this is the diagonal. So here in the diagonal all the elements are equal, that is A, and therefore this square matrix will be called as scalar matrix. Next is unit matrix. A diagonal matrix is said to be unit matrix if the diagonal elements are unity. This is the diagonal, and here the diagonal elements are 1 and other elements are 0, and therefore it will be called as, according to the definition, unit matrix. Row matrix. If the matrix has one row only, then it will be called as row matrix. So this is the example. Here it is only one row, but there are many columns, n columns are there, but row is only one. Therefore this will be called as row matrix. Next is the column matrix. Similar to the above definition, column matrix will be defined as a matrix which has only one column. So this matrix has only one column and there are many rows. Many means n rows in this case. So it is the column matrix. Now this is a problem which you will have to solve. इनको आपको solve करना है. Solve करने से थोड़ी practice होगी. इसको solve कीजिएगा. So a given matrix A is a singular matrix where A is equal to this matrix. So what we will have to show? The determinant of this matrix A will have a value 0. It will have a certain finite value. Give an example of non-singular matrix. एक ऐसा example दीजिए जो non-singular. Okay. Now we have next topic in this matrix will be algebra of matrix. So algebra of matrix will be addition, subtraction, multiplication. This is called the algebra of the matrix. So first one is the addition of matrix. Two matrices can be added together if they are of same order. That is, both have
the same order like this. These two are two different matrices A and B, and they have same order 3 cross 3, 3 cross 3. Then only they can be added. So here each individual, क्या होता है एडिशन करने में, क्या होगा कि each individual member of the first matrix, each individual member of the first matrix is added to the each individual of the second matrix. पहला मैट्रिक्स का एक एलिमेंट जो उस जगह पर है, दूसरे मैट्रिक्स का उस एलिमेंट जो उसी जगह पर है उसके साथ एडिशन होगा. So each individual member of the first matrix is added to the each individual member of the second matrix at corresponding position. यानी उनकी पोजीशन सेम होनी चाहिए. जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो ये वाला इसके साथ आएगा, सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो ये वाला भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है. तो इस तरह से इसका इसके साथ एडिशन होगा. यहाँ पर हम लोग एडिशन करके दिखाए हैं. जैसे 1 का 3 के साथ प्लस होगा, 4 के साथ 2 का होगा, 7 का 3 के साथ होगा, 2 का 2 के साथ होगा, 5 का 1 के साथ होगा. तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा उसका भी ऑर्डर वही होगा जो उन दोनों मैट्रिक्स का होगा, ए और बी. ए का भी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है और बी का भी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है. तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है वो भी हमारा 3 क्रॉस 3 है और उसका जो रिजल्ट है एडिशन आफ्टर द एडिशन इट इज आल्सो 3 क्रॉस 3. सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, तो जिस तरह से हम लोग एडिशन करते हैं सिमिलर टू दैट इट विल बी सब्ट्रैक्शन, ओनली वी विल हैव टू पुट ए नेगेटिव साइन इन प्लेस ऑफ पॉजिटिव साइन. So subtraction is similar to the addition of matrix, only plus sign is replaced by minus sign. For the same matrices given here, A और B के लिए अगर हम लोग A minus B निकाले तो what will be the value? You will have to find out. आपको ये निकालना है, अपने से कैलकुलेट करना. Also calculate B minus A. Not only you will have to calculate A minus B, you also calculate B minus A. And prove that A minus B is not equal to B minus A. You will have to prove this. इसको आप अपने से कीजिएगा as a homework. For the matrices A and B given, above which statement is correct? This you will. This is just like an objective question. So what will be its alternative answer? A, B, C, D. You will have to think over it. Now multiplication of matrix. Next one is the multiplication of matrix. Two matrices A and B can be multiplied, and that will be written as A cross B. If column of matrix A is equal to the row of matrix A. Suppose A is L cross M matrix, that it has L rows and M column, and B is another matrix which is of order M cross N. That is, B is matrix B has M rows and N columns. So what is the condition? When we can multiply two matrices, दो मैट्रिक्स को हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहला वाला मैट्रिक्स, पहला इन द सेंस को जो मल्टीप्लिकेशन साइन के जो पहले लिखे हैं वो दैट इज द पहला. सो पहला वाला जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम का वैल्यू वो दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के वैल्यू के इक्वल होगा. तो यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया है कि पहला वाला मैट्रिक्स हमारा है L क्रॉस M और दूसरा वाला जो मैट्रिक्स B है वो उसका ऑर्डर है M क्रॉस N. पहले वाले का जो कॉलम है वो दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो के इक्वल है और इस तरह से ये दोनों जो मैट्रिक्स है दे आर कंपैटिबल टू बी मल्टीप्लाइड. इनको हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑपरेशन कर सकते हैं. अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो ये दोनों मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं. ये हमारा कंडीशन है. तो ये जो हमारा कंडीशन है उसको हम अप्लाई करते हैं एक प्रॉब्लम में. सपोज वी हैव टू कैलकुलेट A क्रॉस B एंड मैट्रिक्स A इज 2 क्रॉस 2 एंड मैट्रिक्स B इज 2 क्रॉस 3. तो हमारा कंडीशन क्या है कि पहले वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा दूसरे वाले मैट्रिक्स का जो रो होगा उसके इक्वल होगा. तो यहाँ पर ये इक्वल है. ये पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम का वैल्यू 2 है और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम का वैल्यू भी 2 है और इस तरह से दोनों का वैल्यू जब इक्वल हो गया तो these two matrices can be multiplied and it will be A cross B, not B cross A. तो वो अलग होगा. हम लोग लिख रहे हैं A cross B, यानी पहला वाला दूसरा वाला ऐसा समझना है.
कि पहले वाले का जो कॉलम होगा दूसरे वाले का रो के इक्वल होना चाहिए। उलट करके हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो अलग प्रॉब्लम है। तो इस तरह से अगर हमारा ऐसा हुआ, इस जो एग्जाम्पल हमने लिया है और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? तो पहला वाला जो हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के साथ। सो 1 into 5 होगा। फिर अच्छा, दूसरी बात कि जब ये हमारा जो मल्टीप्लीकेशन का जो कंडीशन है तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? हमारा रिजल्ट होगा ये दोनों वैनिश कर जाएंगे और इसका रो और इसका कॉलम बच जाएगा। तो हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा 2 क्रॉस 3। सो रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी 2 क्रॉस 3। इसके मतलब कि हम जो मल्टीप्लीकेशन के बाद जो रिजल्ट लाएंगे उस वो जो मैट्रिक्स मिलेगा उसमें 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। तो 3 कॉलम यहाँ पर हम लोग को बनाने होंगे और 2 ही रो होंगे। तो 3 कॉलम बनाने के लिए ये 1 into 5 प्लस 2 into 1 ये फर्स्ट जो कॉलम में जाएगा और सेकंड कॉलम में कौन सा जाएगा? 1 into 6 प्लस 2 into 2। 1 into 6 प्लस 2 into थर्ड कॉलम में कौन जाएगा? 1 into 7 प्लस 2 into 3। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट होगा। सेकंड रो के लिए हमको 3 क्रॉस 5 प्लस 4 into 1। तो 3 क्रॉस 5 प्लस 4 into 1। सेकंड में कितना होगा? 3 क्रॉस 6 प्लस 4 into 2। और थर्ड में कितना होगा? 3 क्रॉस 7 प्लस 4 into 3। तो इस तरह से हमको जो मैट्रिक्स इसको सबको ऐड कर देंगे और जो रिजल्टेंट मिलेगा वो 2 क्रॉस 3 होगा। Now we have to prove that for matrices A and B, A cross B is not equal to B cross A. So you will have to solve it. ये होमवर्क के जैसा है। आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा कि A क्रॉस B कितना हो रहा है, B क्रॉस A। अभी यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग ये देखें, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है और ये भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। तो इसका अगर हम लोग A क्रॉस B लिखते हैं तो इसमें इसका जो रो है इसका जो कॉलम है इसके रो के बराबर है, इसलिए A क्रॉस B इज पॉसिबल। नाउ B क्रॉस इज पॉसिबल और नॉट। तो इसका जो है वो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये जो है सो कॉलम इसके रो के बराबर है कि नहीं। तो इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, सो दिस इज आल्सो पॉसिबल। अब ये देखना है कि दोनों का वैल्यू सेम होता है कि नहीं। अगर सेम नहीं होता है तो ये वाला जो हम लोग को प्रूव कर पाएंगे। नाउ कैन द मैट्रिक्स A, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन द मैट्रिक्स A and B be multiplied? If yes, then calculate the product. कैसे दिखाएंगे? So this is row is 3 and column is 3. So it is 3 cross 3 matrix and here row is 3 and column is 1. So can these two matrices be multiplied? A cross B is possible or not? तो इसका जो कॉलम है पहला वाले का दूसरा वाला का रो के बराबर है, इसलिए ये मल्टीप्लाइड है। सो 3 क्रॉस और इसका प्रोडक्ट कितना होगा? 3 क्रॉस 1 होगा। सो इट इज पॉसिबल। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा। नेक्स्ट, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स, इसे थोड़ा सा ज्यादा अच्छी तरह से समझिए क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एंड जनरली क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज विद कॉलम and column with the rows of a matrix A is called transpose of a matrix. केवल हम लोग अगर इंटरचेंज कर देते हैं रो को कॉलम से और कॉलम को रो से तो जो नया मैट्रिक्स हम लोग को बनेगा वो उसका ट्रांसपोज कहलाएगा प्रीवियस मैट्रिक्स का। एंड इट इज डिनोटेड बाय A to the power T or A to the power dash of prime. If matrix A is of order P cross Q, अगर कोई दिया गया मैट्रिक्स का ऑर्डर P cross Q है तो जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स का वैल्यू आएगा वो उलट करके आएगा एंड दैट विल बी Q क्रॉस P. नाउ वी हैव टू सॉल्व न्यूमेरिकल लाइक दिस कि कोई मैट्रिक्स दिया गया है लाइक दिस A इज इक्वल टू दिस वन, ये मैट्रिक्स है और इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है। सो राइट डाउन सच ए मैट्रिक्स whose transpose is the same. दिस इज अनदर क्वेश्चन। तो इसको आप अपने से भी कर सकते हैं। इसके रो को इसके कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, इसका रो को इसके कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, इसका रो को इसके कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। ये प्रैक्टिस के लिए है। और अब एक ऐसा
मैट्रिक्स लीजिए जो ट्रांसपोज बनाने पर भी वो सेम आता है, तो आप अपने से उसको थोड़ा सोचिए कि क्या होगा। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि पिछले से भी रिलेटेड था। पिछले वाला जो ट्रांसपोज हम लोग बोलते थे उसको मिला करके इसको सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन कि लेट A be a square matrix and B is the matrix obtained by the cofactors of the elements of the determinant A। पहला क्या करना है कि कोई मैट्रिक्स अगर दिया गया है तो सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट हम लोग को लिखना पड़ेगा। जैसे अगर यही एग्जांपल हम लोग लेते हैं तो ऐसा करके गिवन मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स है, लेकिन हमको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लिखना है। डिटर्मिनेंट लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग लगाए हैं उसके जगह पर हम लोगों को केवल 2 सिंगल लाइन हम लोग को लगाना है। अगर ऐसा लिख देंगे तो इस मैट्रिक्स का ये डिटर्मिनेंट कहलाएगा। तो हमने डेफिनेशन में ये लिखा है कि A बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट A बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स में तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उसका डिटर्मिनेंट भी जो है वो उतना ही होगा, क्योंकि हम लोग केवल उसका स्क्वायर ब्रैकेट को हटा देना है। सो स्क्वायर ब्रैकेट को हटा करके केवल लाइन खींच दिए तो उसका डिटर्मिनेंट हो गया। अब क्या कहता है कि जो डिटर्मिनेंट होगा उसका क्या करना पड़ेगा, B is the matrix obtained by the cofactors of the elements of the determinant। cofactors of the elements of the determinant मतलब ये इस डिटर्मिनेंट का हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर लिखना पड़ेगा। कोफैक्टर कैसे लिखते हैं, तो अगर जैसे मान लीजिए 1 का हमें कोफैक्टर लिखना है तो कितना लिखाएगा कि इसको हम लोग इसको ओमिट कर दें, जो बचेगा उसको लिखेंगे। सो ये 1 का कोफैक्टर कितना होगा, 6, 8 और 9, 8 इसका डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा। उसी तरह से अगर 2 का करना है तो 2 में ये वाला रो और ये कॉलम को एलिमिनेट करना है, जो बचेगा उसको लिखेंगे, लेकिन एक माइनस साइन के साथ। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट प्लस और माइनस हम लोग चलेंगे। पहला वाला प्लस चलेगा, दूसरा वाला रो में माइनस चलेगा, फिर तीसरा वाला में प्लस चलेगा, चौथा रहेगा फिर माइनस चलेगा, तो इसलिए हमने यहाँ माइनस लिखा। और ये 5, 8, 7, 8 करके इसका है और इसके वैल्यू हम लोग लिखे हैं ऐसा करके। तो इस तरह से सभी का कोफैक्टर ऑफ 3, कोफैक्टर ऑफ 5, कोफैक्टर ऑफ 6, कोफैक्टर ऑफ 8, 7, 9 करके सभी का कोफैक्टर हमने निकाल दिया। अब क्या करना है कि जो कोफैक्टर्स हम लोग निकाले, कोफैक्टर हमने जो डिटरमिन किया उसको उसी जगह पर रख करके, मतलब उसी कॉलम और उसी रो में रख करके हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे जो उसका नाम दूसरा देंगे। जैसे पहले वाले मैट्रिक्स का नाम अगर A था, दिस इज A मैट्रिक्स A, तो अब जो इसके कोफैक्टर से मैट्रिक्स जो बनाएंगे वो कहलाएगा B। सो दिस इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट। फिर से मैं बताता हूं कि अगर कोई मैट्रिक्स A दिया गया है तो अभी हमें क्या करना है कि इसके सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने का ये तरीका हमने बता दिया, और ये सब जो है सो उसके कोफैक्टर्स निकाले गए। अब कोफैक्टर को मैट्रिक्स के रूप में हमको रखना है जो जिस पोजीशन पर थे, तो उसके चलते फिर ऐसा हमारा रिजल्ट आया कि हमने कोफैक्टर ऑफ 1 मैंने पहला वाला किया, फिर दूसरा किया, ऐसे करके सारे को हमने कोफैक्टर्स का वैल्यू निकाल लिया सारे एलिमेंट्स का, और उसका मैट्रिक्स बनाया और उसका नाम दिया B। सो B इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स। अब क्या करेंगे, अब इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज क्या है कि व्हेन रोज इज कन्वर्टेड इनटू कॉलम एंड कॉलम इज कन्वर्टेड इनटू रोज। अगर हम लोग रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो ये हमारा मैट्रिक्स है। अब इसका कन्वर्सन करना है, इसके रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में, तो इस तरह से हमने ये कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ये थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, और ये ट्रांसपोज कहलाया। और ट्रांसपोज का नोटेशन क्या है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो या तो हम लोग इसको B के ऊपर T लिखेंगे या B के ऊपर ऐसे करके डैश लिखेंगे, तो वो जो है सो ट्रांसपोज कहलाएगा। सो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। B का T और B प्राइम।
Now, this new matrix, which is the transpose of matrix D, this will be called as the adjoint of given matrix. जो given matrix कौन था? हमारा A. So, इसका adjoint क्या होगा? ये जो है सो हमारा इस तरह से है कि ये adjoint है. So, this is the first topic on this matrices. From onwards, we will start the next topic.